Dear students, welcome to this YouTube channel once again with a high spirit. We are discussing about formulas of mathematical physics according to the syllabus of IIT JAM. And basically we have discussed lot of topics of mathematical physics. Basically in this video series we are discussing about formulas. So today we will discuss three important topics. One is Fourier series, second one is complex number, and the third one is matrices. And we will finish our targeted revision formula series of mathematical physics in this video. In the next video, we will try to start classical mechanics. Okay, in this way, I am trying to finish the whole syllabus before 2nd February. So चलिए देखते हैं फूरियर सीरीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है. और एक बात, इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन ऑब्वियसली सब्सक्राइब माय चैनल and you can go to the playlist also where lot of topics of IIT JAM, different topics I have discussed in great detail. So if you are a beginner, if you are starting your preparation for IIT JAM, then you can go to this detailed video. Otherwise, if you have an exam in 2nd February, then then this revision series will also be very helpful for you for formula revision. So let us discuss about the formula revision series, and today we will discuss basically about Fourier series. तो फूरियर सीरीज में क्या क्या है इंपॉर्टेंट. सो पहले देखो फूरियर सीरीज का जो बेसिक डेफिनेशन है. फूरियर सीरीज के बेसिक डेफिनेशन क्या है? इन द इंटरवल 0,2 पाई. सो 0,2 पाई में हम फूरियर सीरीज को ऐसे डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx. Okay, where a0, an and bn are the constant and this constant can be find out by these formulas. Okay, so where a0 is 1/pi integration 0 to 2 pi f of x dx, an is 1/pi integration 0 to 2 pi f of x cos nx dx, and bn is 1/pi 0 to 2 pi f of x sin nx dx. And please remember, if instead of 0,2 pi, if they given minus pi to pi, then what will happen? If the interval is minus pi to pi, then the formula will be same. Here 0 to 2 pi, instead of 0 to 2 pi, we have to write minus pi to pi. So in that case, what will be our a0? So a0 will be just 1/pi, that will be the same. It will be minus pi to pi f of x dx. Okay, similarly what will be an? In the formula an, there will also be little change, that will be 1/pi into integration minus pi to plus pi. Okay, f of x cos nx dx, and similarly for bn it will be just 1/pi integration minus pi to pi f of x sin nx dx. So you should remember this little change. Okay, if the given interval is minus pi to pi. Okay, so then you have to just revise the formula in the limit basically minus pi to plus pi. Otherwise everything will be same. Then you can expand this f of x in this way with this series. Okay, so now if the interval is again little change, if the interval is instead of minus pi to pi and 0 to 2 pi, if we take it as minus l to l and 0 to l, in that case your series will be a0/2 n equal to 1 to infinity cos n pi x upon l, an cos n pi x upon l, and bn sin n pi x upon l. According to this the formula will also be revised. जैसे a0 जो होगा that is 1/l minus l to l plus f into f of x dx, an होगा 1/l minus l to l f of x cos n pi x upon l into dx, and bn जो है that is 1/l minus l to l f of x sin n pi x by l into dx. देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखो जैसे यहाँ देखो हमारा वहाँ जो nx था ना, जैसे cos nx था और sin nx था, nx की जगह क्या हो गया? देखो n pi x अपन l हो गया, n pi x अपन l हो गया बस, और कुछ नहीं. n के जगह आप ऐसे याद रखते हो दैट इज n pi अपन l, n के जगह हो गया n pi अपन l इंटू x. ओके, अदरवाइज जो फॉर्मूला है वो सेम है और लिमिट भी इन टर्म्स ऑफ l हो गया. तो ये जो फॉर्मूला है सेम होगा. अगर देखो ये 0 to 2l होता तो ये इंटीग्रेशन का लिमिट थोड़ा सा चेंज होगा, दैट इज 0 to 2l होगा. अदरवाइज अगर माइनस l to l है तो ये भी माइनस l to l ही होगा. तो ऐसे आप याद रख सकते हो इस फॉर्मूला को. ओके, सो नेक्स्ट देखो, दिस आर द वेरी बेसिक फॉर्मूला यू कैन रिमेंबर. अब देखो जो इवन फंक्शन है और ऑड फंक्शन है, इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो इवन फंक्शन अगर है तो यू नो कि इवन फंक्शन का जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए. दिस इज द इवन फंक्शन. एंड इवन फंक्शन का और भी एक चीज़ है यू नो कि अगर इवन फंक्शन का ऐसे माइनस एल टू प्लस एल, अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्वाइस इंटीग्रेशन
0 to L f of x dx। ओके, बट ये अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या था? ऑड फंक्शन का डेफिनेशन था दैट विल बी f of माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए जैसे इंटीग्रेशन का ये वैल्यू आता है, सिमिलरली ऑड फंक्शन के लिए ये माइनस एल टू प्लस एल अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स है सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ काम आएगा। सो इवन फंक्शन के लिए देखो, इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज ए जीरो प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉस एन पाई एक्स अपन एल। यहाँ आप देख सकते हो कि साइन टर्म जो है वो नहीं है। साइन टर्म क्यों नहीं है? देखो इवन फंक्शन के लिए क्या होगा, देखो इवन फंक्शन के लिए ये जो टर्म है ए जीरो टर्म तो सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि ए जीरो का देखो ए जीरो का जो एक्सप्रेशन था, ए जीरो का एक्सप्रेशन था 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा ए जीरो के लिए। लेकिन ए एन के लिए क्या होगा? देखो ए एन के लिए क्या होगा? अच्छा ये जो है देखो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, इसमें थोड़ा सा गलती है, क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला था एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये ऐसा था ए जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा था ना। तो अगर इसको हम मॉडिफाई करते हैं बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला तो ये क्या हो जाएगा? देखो इट विल बी 2 बाहर आएगा, सो 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। सो यहाँ जो 1 अपॉन एल है ये 1 अपॉन एल नहीं है, ये हो जाएगा 2 अपॉन एल। ओके, लेकिन देखो ए एन के लिए भी सेम है। जैसे कि देखो एफ ऑफ एक्स जो है ये एक इवन फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और कॉस जो है कॉस भी एक इवन फंक्शन ही होता है। तो इवन इंटू इवन ऑलवेज इवन फंक्शन हो जाएगा, इसलिए यहाँ से 2 जो है वो बाहर आ गया। सो ये भी 2 अपॉन एल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स हो गया। और बी एन जीरो क्यों? देखो बी एन का जो एक्सप्रेशन था दैट इज इक्वल टू क्या था? इसमें एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स था, एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल था। मैं सिर्फ ये लिखता हूँ। तो देखो ये जो है ये इवन फंक्शन और ये जो है ये ऑड फंक्शन, और इवन इंटू ऑड हमेशा ऑड हो जाता है, और ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज माइनस एल बाई एल टू एल लिमिट में वो 0 हो जाएगा, इसलिए बी एन देखो 0 हो गया। ओके, नाउ देखो ऑड फंक्शन के लिए क्या होगा? ऑड फंक्शन के लिए क्या होगा? देखो ऑड फंक्शन के लिए देखो यहाँ ए जीरो भी 0 हो गया और ए एन भी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ए जीरो क्यों 0 है? क्योंकि एफ ऑफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है ये 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस रूल। ओके, ये 0 हो जाएगा, तो ए जीरो भी 0 हो गया। अब देखो यहाँ बी एन सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एफ ऑफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है और ये भी ऑड है, साइन भी ऑड फंक्शन है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये बेसिकली इवन हो जाएगा। सो ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू इवन। सो इसीलिए बी एन यहाँ सर्वाइव कर रहा है, लेकिन ए जीरो एंड ए एन दोनों सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ए एन में देखो ऑड इंटू इवन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स ऑड है, तो अगर ये ऑड हो जाएगा और ये इवन, तो इवन इंटू ऑड हमेशा ऑड ही होता है। इसलिए देखो ऑड फंक्शन के लिए ओनली बी एन विल बी सर्वाइव। ओके, और इवन फंक्शन के लिए 2 टर्म सर्वाइव करेगा, ए जीरो एंड ए एन 2 टर्म ही सर्वाइव कर जाएगा। ओके, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि कैसे इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के लिए हम फूरियर सीरीज को एक्सपांड कर सकते हैं। इसको साइन एंड कोसाइन सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो यहाँ जो है यहाँ ओनली ए एन सर्वाइव कर रहा है, मतलब इसका मतलब कॉस टर्म विल बी सर्वाइव, सो द फंक्शन द एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन विल बी इन दिस कॉस टर्म्स। सिमिलरली फॉर ऑड फंक्शन आप देखो ये जो है यहाँ ओनली बी एन विल सर्वाइव एंड द एक्सप्रेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ साइन, इसलिए इसको साइन सीरीज और इसको कॉस सीरीज भी बोलता है, साइन और कोसाइन सीरीज भी बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है? ये जो है ये एन इज इक्वल टू ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है। ये एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिखा है सी एन टू द पावर आई एन एक्स। तो जो हम ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो अपॉन 2 एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है ना कॉस एन साइन एन एक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, उसको हम ई टू द पावर आई की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, क्योंकि यू नो कि ये जो है ई टू द पावर आई थीटा जो ओएलएस फॉर्मूला है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। तो इसीलिए हम क्या किया, इसको जो है ई टू द पावर फॉर्म में अगर हमने लिख दिया तो ये जो है ये बहुत ईजी हो जाएगा। सो इन दैट केस आपका जो सी एन बनेगा, मतलब ये जो कोफिशिएंट है दैट विल बी अगेन 1 अपॉन 2l इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स डी एक्स। ओके, लेकिन देखो अगर फॉर 0 टू 2l है, ये 0 टू मतलब ये जो सीरीज है ये 0 टू 2l ही है। अब देखो इसको अगर हम ऐसे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन टू द पावर माइनस आई एन पाई एक्स अपॉन एल ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ माइनस देखो ये जो है ये स्पेशली क्या है ना, यहाँ जो है ये पाई के फॉर्म में लिखना चाहिए था,
मतलब देखो n पाई एक्स अपन एल अगर आए तब तो ये एल होगा ना, तो इसमें जो है ये 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई होना चाहिए था। ओके, सो दिस इज फॉर द इंटरवल 0 to 2 पाई एक्चुअली, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन अगर 0 to 2l है इन दैट केस ये ऐसे होगा। ओके, 1/2l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर माइनस n पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। सो दिस विल बी the same thing but in the interval 0,12। this form is for the interval 0,2 पाई, या फिर आप कह सकते हो कि माइनस पाई कोमा पाई। ओके, सो दिस थिंग विल बी फॉर दैट 2 पाई इंटरवल के लिए और ये 2l इंटरवल के लिए। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग्स ऑल्सो। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। समटाइम्स प्रॉब्लम्स ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म से भी आपका जो फूरियर सीरीज का प्रॉब्लम वो आ सकता है, तो यहाँ से आप cn भी निकाल सकते हो, फिर e टू द पावर में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और e टू द पावर से हम साइन और कोसाइन में भी आ सकते हैं ऐसे। ओके, अब देखो पार्सेवल्स आइडेंटिटी। पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या होता है, ये एफ ऑफ एक्स जो है वी नो कि ये a0 प्लस n इक्वल टू 1 to infinity n cos nx प्लस bn sin nx, दिस इज द एफ ऑफ एक्स। अब देखो इसको अगर हम स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं तो ये एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर 1/पाई माइनस पाई टू पाई अगर ऐसे फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो है ये 2a0 स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 1 to infinity an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर ये फॉर्म में आ जाता है। तो ये पार्सेवल आइडेंटिटी जो है ये भी आप याद रख सकते हो। यहाँ से भी कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम्स जो है इजीली सॉल्व हो जाता है इस फॉर्मूला से, ये पार्सेवल आइडेंटिटी से। ये भी आपको याद रखना है, ये एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर फॉर्म में हम ये जो an bn का जो कोफिशिएंट्स है इसको हम एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं थ्रू पार्सेवल आइडेंटिटी। सो दीज आर द लिटिल कॉन्सेप्ट्स अबाउट द फूरियर सीरीज, और ये जो फार्मूला यूज होता रहता है फूरियर सीरीज में। फूरियर सीरीज से हमेशा एक क्वेश्चन आता है आईआईटी जेईई में, और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगेन ये जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स आपका 10+2 लेवल का है, 11-12 में आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन देखो आईआईटी जेईई के लिए जो है वो ओनली कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा ही है, लेकिन अगर हम जेस्ट और अदर एमएससी एंट्रेंस में जाएंगे तो वहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी है। मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या रहता है, यहाँ जो है कैलकुलस रहता है। ओके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, लेकिन यहाँ देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर ही है अकॉर्डिंग टू आईआईटी जेईई सिलेबस। सो इन दिस वीडियो आई हैव ओनली डिस्कस्ड अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर, लेटर आई विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑल्सो या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑल्सो। ओके, सो देखो यहाँ क्या क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी सिंपल थिंग्स है जो आप पहले से ऑलरेडी बहुत बार इसको पढ़ चुका है। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को हम a प्लस आई बी ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर यू नो आई इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब देखो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको आई टू द पावर n जो है, तो आई टू द पावर n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जहाँ n इज ग्रेटर देन 4, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 के डिवाइड करने के बाद इसको हम क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 4q अपॉन r, है ना। और देखो आई टू द पावर 4 जो है वो हमेशा 1 होता है, इसलिए इसको हम 4 से डिवाइड करने में आसान हो जाता है, क्योंकि देखो यू नो आई इक्वल टू अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है तो यू नो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, सो आई टू द पावर 4 इक्वल टू 1 होता है हमेशा। इसलिए सपोज हमारे पास ऐसे आई टू द पावर 16 है, तो हम इसको ऐसे 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 4 16 हो गया। तो देखो यहाँ क्या होगा आई टू द पावर 4 उसके ऊपर 4 लिख सकते हैं, तो ये जैसे 1 टू द पावर 4 हो गया, वेरी सिंपल। ऐसे अगर हमेशा ऐसा नहीं है कि 4 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे अगर ये 18 होता, सपोज ये अगर 18 होता तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 16 यहाँ 2 रह जाता, तो आई टू द पावर 18 को हम ऐसे लिख सकते थे ना, ऐसे लिख सकते हैं कि आई टू द पावर 4 टू द पावर 4 है ना, इंटू आई स्क्वायर। तो देखो ये जो है ये तो 1 हो गया, ये -1, तो आंसर -1 हो जाएगा। ऐसे 4 से डिवाइड करके हम इसको क्वोशिएंट रिमाइंडर फॉर्म में लिख के उसको निकाल सकते हैं। और एक बार आपको याद रखना है कि द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स जो है आई का, जैसे in + in + 1 + in + 2 + in + 3, ये हमेशा 0 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे है आई स्क्वायर है ना प्लस आई क्यूब प्लस देखिए आई टू द पावर 4 है ना, आई टू द पावर 4 प्लस सपोज आई टू द पावर 5 ऐसे है कॉन्जिक्यूटिव 2 3 4 5, तो ये हमेशा 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, देखो ये आई स्क्वायर जो है और आई टू द पावर 4 देखो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, तो कट गया। देखो आई क्यूब का मतलब क्या है आई स्क्वायर × 1, तो ये हो गया -1, और यहाँ देखो यहाँ क्या होगा आई स्क्वायर × आई क्यूब, तो ये अगेन -1 है ना, ये सॉरी +1, तो ये +1, तो ये -1 एंड +1 ये भी कट जाएगा, तो फाइनली 0 हो जाएगा। ऐसे में एक एग्जांपल दे दिया 2 3 4 5 के लिए, लेकिन स्पेशली क्या होता है ये 4 कॉन्जिक्यूटिव ऐसे पावर अगर है तो ये हमेशा 0 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये देखो ये सब टॉपिक्स जो है यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर 10+2 लेवल, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड है। देखो मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यू नो इफ यू हैव जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, यू नो इसका जो मॉड्यूलस होता है मॉड जेड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इसका जो मॉड्यूलस आर्गुमेंट होता है थीटा दैट इज बेसिकली tan इनवर्स ऑफ माइनस बी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है। और ये जो है माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई होता है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू। आप इसको 4 क्वाड्रेंट में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ जो है यहाँ का थीटा है, यहाँ पाई माइनस थीटा है, यहाँ थीटा माइनस पाई होता है और यह माइनस थीटा होता है। ऐसे आप याद रख सकते हो कि थीटा जो आएगा उसके बाद वो किस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से आपको थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई और माइनस थीटा ऐसे वो आएगा। ओके, ये आपको याद रखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर आप ऐसे इसको याद रखो तो निकालने में बहुत इजी हो जाएगा, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट देखो मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में क्या है, देखो जैसे कि हम जेड इक्वल टू लिख सकते हैं आर्क इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्यों, देखो क्योंकि देखो जेड इक्वल टू क्या था, जेड इक्वल टू था ए प्लस आई बी, है ना। तो अगर हम ए को आर कॉस थीटा मान लिया, है ना, और बी को अगर हम आर साइन थीटा मान लिया, तो जेड देखो आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा, है ना, प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। सो यहाँ से अगर हम आर को कॉमन ले लेते हैं तो इट विल बी जस्ट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एंड यू नो फ्रॉम ऑयलर्स थ्योरम ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है दैट इज ये होता है ई टू द पावर आई थीटा। सो जेड इज इक्वल टू नथिंग बट आर ई टू द पावर आई थीटा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ से हम जैसे ई टू द पावर आई थीटा में पहले बता दिया कि ये है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो ई टू द पावर माइनस आई थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो ऐसे हम कॉस थीटा को ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं कि ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। ये दो एक्सप्रेशन जो है इसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके ये कॉस थीटा और साइन थीटा निकल सकते हैं। सिमिलरली देखो आई को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन बाई 2। क्यों, देखो क्योंकि देखो कॉस पाई बाई 2 क्या होता है, 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1, सो ये आई हो गया। सिमिलरली माइनस आई को हम लिख सकते हैं कॉस और माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2। ये भी आपको कभी कभी ऐसे लिखना पड़ेगा, तो ये बहुत आसान हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली देखो अगर ये पावर n है, इसको हम डी मोइवर्स थ्योरम भी बोल सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n है, तो ये cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाता है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। ओके, तो सिमिलरली देखो अगर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है जैसे कि r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा कॉस थीटा एन कॉस बीटा प्लस ये टर्म जो है ये एक्स्ट्रा आ गया। देखो जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा हो गया, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। तो ये कॉस एंगल जो है देखो थीटा प्लस बीटा हो जाएगा, सिमिलरली थीटा प्लस बीटा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन इन जनरल हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो जेड इक्वल टू अगर आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n है, जैसे हम यहाँ लिखा था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू n को कॉस n थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन ये जनरल नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए है। लेकिन अगर ये जनरल है तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर टू द पावर n इंटू कॉस ऑफ 2k पाई प्लस थीटा अपन n प्लस आई साइन 2 पाई k प्लस थीटा अपन n और k इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट n माइनस 1। ओके, ये जो फॉर्मूला है ये आपने कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में पढ़ा था 10+2 लेवल में, मैं फिर भी बता रहा हूँ थोड़ा बहुत क्योंकि आपको याद रहना है। देखो ये e टू द पावर x का जो सीरीज है ये भी आपको याद रखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यू अपन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपन फैक्टोरियल 4, मतलब सारे टर्म्स है। देखो ऑड इवन सारे टर्म्स है, यहाँ पर अगर x अपन फैक्टोरियल 1 मान लिया, लेकिन देखो साइन hx अगर है तो इसमें क्या है, देखो x प्लस एक्स क्यू अपन फैक्टोरियल 3 एक्स टू द पावर 5 अपन फैक्टोरियल 4 एक्स टू द पावर 5 अपन 7 अपन फैक्टोरियल 7। यहाँ देखो ओनली ऑड टर्म है और कॉस hx कॉस हाइपरबोलिक में क्या है, ओनली इवन टर्म है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये साइन x होता hx के जगह तो यहाँ जो है माइनस प्लस जो है ऑल्टरनेटिव होता, जैसे कि x माइनस एक्स क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 होता, उसके बाद एक्स टू द पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5 होता, उसके बाद माइनस एक्स टू द पावर 7 अपन फैक्टोरियल 7 होता। तो ये प्लस माइनस जो है ऑल्टरनेटिव होता रहता है अगर ये साइन x है। सिमिलरली अगर ये cos x है तो यहाँ भी सेम केस होगा, ये 1 माइनस जैसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस फैक्टोरियल 2 होगा प्लस ये एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 होगा, सिमिलरली माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 होगा। ऐसे ये ऑल्टरनेटिव जाएगा प्लस माइनस अगर ये प्योर साइन एक्स एंड कॉस एक्स है। लेकिन अगर हाइपरबोलिक फंक्शन है तो ये सब प्लस ही होगा। ओके, डोंट वरी। सो नेक्स्ट देखो रिलेशनशिप, ये तो मैंने पहले बता दिया कि अगर e टू द पावर आई एक्स के जगह e टू द पावर x है तो इन दैट केस सिंपल cos hx प्लस sin hx हो जाएगा। सिमिलरली ये पावर जो है देखो i को e टू द पावर आई पाई बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों आई पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि i इक्वल टू e टू द पावर आई पाई बाई 2 क्यों होगा, क्योंकि देखो e टू द पावर आई थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो ये पहले बता दिया cos पाई बाई 2 प्लस आई इंटू साइन पाई बाई 2 है ना।
तो देखो sin 91 cos 90 0, सो ये आई हो गया। ऐसे हम आई स्क्वायर आई क्यूब को i⁴ को ऐसे e⁴ में हम लिख सकते हैं। अब देखो रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो देखो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा e⁴ हो जाएगा। क्यों e⁴ होगा? क्योंकि देखो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, e⁴ 1 जो है देखो 1 को हम लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1 को, क्योंकि देखो e⁴ अगर i इंटू 2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना cos 2 प्लस i sin 2। अब देखो i sin 2 लिख सकते हैं, देखो sin 2 तो 0 है लेकिन cos 2 1 है, तो देखो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये 1 के जगह हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब जो है दैट इज इक्वल टू e⁴ i इंटू 2 तो देखो i इंटू 2 है ना, तो x क्या होगा देखो, तो x हो जाएगा e⁴ i इंटू 2 देखो 2 लेकिन एक k जो है डिफरेंट वैल्यू के लिए होगा, 0 1 2 सब के लिए होगा, 1 के लिए भी होगा, 2 के लिए भी होगा, सो इन जनरल इसको हम बोलते हैं 2πk/3। तो ऐसे हम, और k इक्वल टू 0 1 2 के लिए देखिए 3 रूट आएगा, क्योंकि देखो ये जो है क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ 3 रूट से आना है, तो इसलिए k इक्वल टू 0 1 2 के लिए 3 रूट आएगा, x1 x2 और x3। ओके, यहाँ x1 जो है दैट इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि e⁴ 0 इक्वल टू 1, सो ये होना चाहिए था x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू दिस एंड x3 इक्वल टू दिस। और इसको हम कभी कभी 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर भी मानते हैं ना, 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर भी मानते हैं। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। और देखो ये तो सेम थिंग है, हाइपरबोलिक फंक्शन cos hx जो है e⁴x प्लस e⁻x अपन 2 लिख सकते हैं, sin hx को e⁴x माइनस e⁻x अपन 2 लिख सकते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो ln r प्लस आई थीटा है ना, ये वेरी सिंपल है। देखो ln z जो है, z को अगर हम लिखते हैं r e⁴i थीटा, अभी बताया मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा r e⁴i थीटा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना ln r प्लस आई थीटा, लेकिन थीटा को इन जनरल हम लिख सकते हैं कि 2nπ प्लस थीटा, ये थीटा जो है ये सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए है, -π टू +π के लिए। ओके, तो ये सब जो वैल्यू है ये आपको याद रखना है फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है दैट इज मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स में और भी अगर हम स्पेसिफाई कर दिया तो ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर से मैट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा एक साल भी पेपर में आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैंने डिस्कस किया है इन डिटेल्स। अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां मैं आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर कैसे निकलते हैं डिटेल्स वीडियो बना रखा है। ओके, सो चलिए हम यहाँ तो ओनली हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। जैसे देखो मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि रेक्टेंगुलर एरो ऑफ नंबर सिंबल्स और एक्सप्रेशन अरेंज इन रो एंड कॉलम्स। ओके, ऐसे हम रो एंड कॉलम्स में हम ऐसे अरेंज करते हैं। ओके, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हो गया एक 3x3 मैट्रिक्स, यू नो दिस। अच्छा, मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसमें क्या होता है, रोज एंड कॉलम जो है इंटरचेंज होता है। जैसे यहाँ ABC है तो अगर ABC जो है इधर आ गया ऐसे, DEF अगर इधर आ गया है ना, GHI अगर इधर आ गया, तो रो एंड कॉलम अगर इंटरचेंज हो गया तो इसको अगर हम मैट्रिक्स A बोलते हैं तो इसको हम बोलेंगे A ट्रांसपोज, यू नो दिस। ओके, ना देखो सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज इक्वल टू अगर A हो गया, मतलब ये दोनों अगर सेम है, A ट्रांसपोज और A सेम है तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। अगर A ट्रांसपोज और A में एक नेगेटिव साइन है तो उसको हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक। सिमिलरली देखो ट्रांसपोज का ये फॉर्मूला है A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सिमिलरली अगर एक स्केलर हम मल्टीप्लिकेशन में है लैम्डा इंटू A टू द पावर ट्रांसपोज, सो A ट्रांसपोज ये सिंपली लैम्डा A ट्रांसपोज हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। A B ट्रांसपोज जो है दैट इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, इसको भी याद रखना है। ओके, अब देखो सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जैसे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यू कैन सी कि ये नीचे वाला जो ये ऐसे होता है एक्चुअल में, ये नीचे वाला जो 3 है देखो 0 0 इधर देखो है ना, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ये नीचे एक देखो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं 0 में, और देखो ये लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, अपर जो है इधर देखो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो ये 3 वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इधर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और लोअर में अगर 0 है तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये वेरी बेसिक सिंपल डेफिनेशन है, ये आपको याद रखना है। सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ओनली डायगोनल टर्म्स ओनली एग्जिस्ट करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो डायगोनल टर्म जो है सेम होता है। जैसे यहाँ देखो अलग अलग था 2 1 6, लेकिन ये सेम है। अगर ये 1 हो गया
सब डायगोनल टर्म्स जो है 1 हो गया। देखो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक के लिए ऐसे हो गया, 1 0 0 मतलब फॉर्मेट चेंज हो गया, 0 1 0 और 0 0 1। देखिए अगर ये सब 1 है तो इसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, देखो ये पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स में ये अलग अलग होगा, ये अगर सेम है तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और ये स्केलर मैट्रिक्स में सारे टर्म यूनिटी है तो उसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ओके, तो ये स्पेशल जो है डायगोनल मैट्रिक्स का ही अलग अलग फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट देखो इनवर्स मैट्रिक्स, ये भी आपको पता है 10+2 लेवल से आप पढ़ रहे हो कि ए इनवर्स जो होता है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। सो पहले आपको एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद अगर हम डिटेल निकालते हैं तो ये आ जाएगा। देखो और एडजॉइंट ए क्या है, स्पेशली कोफैक्टर ऑफ ए आई जे का जो कोफैक्टर है वो एक एक कोफैक्टर से अगर हम एक मैट्रिक्स को बनाते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाता है, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम डिटरमिनेंट ए से डिवाइड करते हैं तो ए इनवर्स आ जाता है। देखो ए इनवर्स ऑफ ए जो है वो सिंपल ए हो जाता है फिर से। इफ ए हैज एन इनवर्स देन ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब अगर ए का इनवर्स है तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर। लेकिन अगर इनवर्स नहीं है मतलब क्या है, अगर देखा जाए कि डिटरमिनेंट ए 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका जो है इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो इफ ए हैज एन इनवर्स द इनवर्स इज यूनिक, अगर उसका इनवर्स है तो एक ही इनवर्स होगा, यूनिक होगा। नेक्स्ट देखो द मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने बता रहा था, यहां से क्वेश्चन आएगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो देखो अगर हम मैट्रिक्स को ऐसे इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ए माइनस देखो लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये डिटर्मिनेंट जो है ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से जो लैम्डा का वैल्यू निकल सकते हैं हम, जो निकलेगा जैसे कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, इट विल डिपेंड ऑन द मैट्रिक्स फॉर्म्ड हियर, ये 2/2 है या फिर 3/3 है। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज। ओके, तो देखो यहाँ से जो निकलेगा इस यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से उसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यूज। एंड एक एक आइगन वैल्यू के लिए जैसे ये इक्वेशन अगर हम सेट करेंगे कि ए एक्स ओके इक्वल टू लैम्डा 1x, तो यहाँ से जो x आएगा दैट x मैट्रिक्स है ना, दिस विल बी आइगन वेक्टर फॉर द आइगन वैल्यू लैम्डा 1। सिमिलरली लैम्डा 2 के लिए अलग x आएगा, लैम्डा 3 के लिए अलग x आएगा। तो ऐसे आइगन वेक्टर भी हम निकल सकते हैं। अब देखो ये जो है अगर मान लीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये लैम्डा क्यू प्लस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 0 आया। अब देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, ये जो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब क्या, लैम्डा की जगह अगर हम ए लिख दिया जैसे ए क्यूब प्लस है ना ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी आई इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलते हैं कि केले हैमिल्टन थ्योरम, CH थ्योरम। ये CH थ्योरम से भी क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये CH थ्योरम। ओके, सो देखो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, वहां से आप वो बोलेगा कि वहां से लैम्डा निकालो, आइगन वैल्यूज निकालो, फिर एक एक आइगन वैल्यूज के लिए एक एक अलग अलग हम आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। और वहां से हम ऐसे भी वो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में जो इक्वेशन है, मतलब मैट्रिक्स जो इक्वेशन को फॉलो करेगा, ये जो इक्वेशन है ये भी हम निकाल सकते हैं। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। नेक्स्ट देखो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन क्या है, अगर देखो एक्स आई का ट्रांसपोज एंड एक्स जे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर डेल्टा आई जे है, डेल्टा आई जे का मतलब क्या है, देखो डेल्टा आई जे का मतलब क्या है, डेल्टा आई जे का मतलब है ये दिस विल बी जे है ना, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0। ये 1 कब होगा, देखो ये 1 होगा जब i इक्वल टू जे है, i इक्वल टू जे है, और 0 कब होगा जब i नॉट इक्वल टू जे है, जब i नॉट इक्वल टू जे है। तो ये जो है एक्स ट्रांसपोज i और एक्स जे, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये अगर डेल्टा आई जे है, मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन बोलेंगे तो उसको भी 1 हो जाएगा इफ i इक्वल टू जे है ना। मतलब जैसे एक सेम मैट्रिक्स हो गया एक्स आई टू द पावर एक्स आई का ट्रांसपोज और एक्स आई, ये देखो क्या हो जाएगा i इक्वल टू जे, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, सपोज देखो दो आइगन वेक्टर सपोज निकला, तो एक x1 ट्रांसपोज के साथ अगर हम x2 को करते हैं तो ये अगर 0 हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, मैंने पहले बता दिया था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए। देखो यहाँ जो इंपॉर्टेंट थिंग है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने फिर क्यों लिखा, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक खास प्रॉपर्टी है आइगन वैल्यूज में। क्या है, द आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। आपको ये याद रखना है। समटाइम्स क्या होता है, ऑप्शंस में जो आइगन वैल्यूज रहता है, आप देख लिया कि एक ऐसा ऑप्शन है जहां सारे आइगन वैल्यूज रियल है, और आपको मैट्रिक्स देख के ये पता चला कि ए ट्रांसपोज जो है ए के इक्वल है,
तो उसमें वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आपको आइगन वैल्यूज अलग से निकालने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको याद है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। सिमिलरली देखो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, वहां क्या है, द आइगन वैल्यू जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। ये आइदर प्योरली इमेजिनरी होगा अदरवाइज जीरो होगा। और देखो एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज ऑल मेन डायगोनल एंट्रीज जो है वो हमेशा जीरो होगा। ओके, और देखो एक मैट्रिक्स को और उस ट्रांसपोज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एनी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए मे बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर एंड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एस। तो देखो ये जो एंटी सिमेट्रिक है ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स को अगर हम ऐसे, मतलब ए मैट्रिक्स को हम ऐसे सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक का जो समेशन है, एडिशन है, इस फॉर्म में हम हमेशा लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जो मैंने अभी पहले ही बता दिया था, जो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, वो कंडीशन यहाँ काम आएगा। जैसे कि ए आई इंटू ए जे है अगर, और हम ऐसे ए आई ट्रांसपोज ए जे करते हैं, तो ये अगर जीरो है तो आई नॉट इक्वल टू जे हो जाएगा, ये वन है, मतलब आई इक्वल टू जे में ये वन हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू जे में ये जीरो हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखो ए रियल स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू वन, और ए रियल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड इफ एंड ओनली इफ कॉलम वेक्टर्स और आल्सो रो वेक्टर्स आर फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन। तो वो जो एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स क्या करेगा, एलिमेंट जो है वो ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन जो है वो फॉलो करेगा। ओके, और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है दैट विल फॉलो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई आइडेंटिटी। तो उसको इस केस में हम उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, और वहाँ जो ए ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। क्योंकि देखो ए ट्रांसपोज अगर ए आई है, आइडेंटिटी है, तो ये तो ऑब्वियस बात है कि ए ट्रांसपोज जो है दैट विल बी ए इनवर्स। ओके, अब देखो द डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए हैज द वैल्यू प्लस माइनस वन। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा प्लस माइनस वन होगा। द आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए रियल होगा और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इन पेयर्स एंड हैव एब्सोल्यूट वैल्यू वन। तो ये जो इसका जो आइगन वैल्यूज है वो क्या होगा, आइदर रियल होगा, अगर रियल नहीं है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर में रहेगा, एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो मैट्रिक्स जो रहेगा उसका जो वैल्यू होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू वन होगा। ओके, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब मान लो कि ये ए प्लस आई बी है और एक ए माइनस आई बी है, ऐसे फॉर्म में है, लेकिन इन दोनों का जो मॉड होगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ, ये वन होना चाहिए, इसका मतलब यही है। ओके, अब देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू अगर ए है तो उसको हम बोलेंगे क्या, हर्मिशियन मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है यहाँ। ओके, तो इफ ए इज हर्मिशियन द एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल मस्ट सैटिस्फाई ए आई आई इक्वल टू ए आई स्टार, है ना, आई स्टार, मतलब दे आर रियल होगा। ओके, स्टार का मतलब है यहाँ कॉन्जुगेट। तो इफ हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू देखो ए स्टार, है ना, हिंस अ रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो रियल हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होता है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हर्मिटिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में आपको जो आइगन वैल्यूज का जो कंडीशन है वो सिमिलर होता है। ओके, तो देखो यहाँ भी ऐसे देखो द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर प्योरली इमेजिनरी और जीरो, ये भी आपको याद रखना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ए। तो देखो यहाँ ओनली डिफरेंस हर्मिशियन और सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है, हर्मिशियंस में क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है दैट इज इक्वल टू ए होता है, और वहाँ क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था। तो ये हो गया सिमेट्रिक, ये हो गया हर्मिशियन। अगर देखो यहाँ माइनस हो गया तो ये हो गया स्क्यू हर्मिशियन, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन इसमें जो एक कॉमन चीज है वो है आइगन वैल्यूज में, कि देखो आइगन वैल्यूज जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेम है, और हर्मिशियन मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रियल होता है आइगन वैल्यूज, और स्क्यू हर्मिशियन और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो प्योरली इमेजिनरी होगा, अदरवाइज वो जीरो होगा। ठीक है, अब देखो यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, है ना। इफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज रियल देन ए ट्रांसपोज ये जो है ए ट्रांसपोज, हाँ ठीक है, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। और इफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज रियल देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। Hence a real unitary matrix is an orthogonal matrix you can say.
एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1, ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अगर आइगन वैल्यूज है तो उसमें के लैम्डा 1 के लैम्डा 2 के लैम्डा 2 आइगन वैल्यू हो जाएगा के ए मैट्रिक्स का। तो जस्ट अगर एक मैट्रिक्स के साथ एक अगर ऐसे स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है तो आइगन वैल्यूज में भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो सिमिलरली देखो, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, देन लैम्डा 1 टू द पावर के लैम्डा 2 टू द पावर के एंड लैम्डा n टू द पावर के आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए टू द पावर के। ओके, आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज एंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा n इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए। इसका मतलब क्या है, देखो द सम ऑफ द आइगन वैल्यू, ये आपको याद रखना है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज इक्वल टू क्या है ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस तो आपको पता ही है डायगोनल एलिमेंट का सम है। ओके, और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो है दैट इज इक्वल टू आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऐसे अब मैथमेटिकल फिजिक्स का जो सारा फार्मूला है मैंने डिस्कस कर दिया। तो ये फार्मूला आप एक बार देख लो, 3 वीडियो में ये पूरा का पूरा जितना भी फार्मूलाज था मैथमेटिकल फिजिक्स का मैंने सब डिस्कस कर दिया। ओके, लेकिन न्यूमेरिकल सब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो टारगेट है समथिंग डिफरेंट। टारगेट क्या है, 2 तारीख से पहले एक चैप्टर का जो MCQ जो न्यूमेरिकल्स था, ये सॉरी जो फार्मूलाज था वो फार्मूला रिविजन करना। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अभी लास्ट टाइम में ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये सिलेबस जो है मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन देखो अगर आपका पूरा प्रिपरेशन है ऑलरेडी तो ये जो फार्मूलाज मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए, ये आपको काम में आएगा। ओके, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली द डे बिफोर एग्जाम। या अगर आप शॉर्ट नोट्स में अगर आप लिख कर रखा हो तो एग्जाम से के जो पहला दिन है उस दिन आपको रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। ओके, क्योंकि देखो हमारा जो 3 साल का प्रिपरेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करते हैं। लेकिन देखो एग्जाम में वो प्रॉब्लम आप तब कर पाओगे जब फॉर्मूला आपको याद होगा। क्योंकि देखो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, फॉर्मूला के पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये तो हमने 3 साल से पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट 2.5 साल तो होगा ही ना, 2.5 साल तो हम पढ़ते ही रहते हैं पूरा सिलेबस जो है। और ये सिलेबस जो है IIT JAM का आपको पता है ये बहुत छोटा सिलेबस है कंपैरेटिव टू द बेस ऑन सिलेबस। तो अगर आप अच्छे से ये फॉर्मूला याद कर लोगे एग्जाम हॉल में तो आपके लिए ये एग्जाम जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, सो इसलिए मैं ये फार्मूला जो है डिस्कस कर रहा हूँ और विद द टाइम लिमिट। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन ऑब्वियसली आई विल डिस्कस इन मोर डिटेल्स ऑफ आवर IIT JAM कोर्स। ओके, बट नाउ I do not have any scope of discussing more detail. So I will discuss after 2nd February. We will launch a new series of videos for upcoming exam for 2026. Okay. So for today, thank you.